great directors. When two of these tremendously talented people come together to make a film, the result is often a classic. Today we have with us such a great duo. When this actor-director duo performs, it's assured that success follows them. We are happy to have this actor-director duo sharing their experience with us. Our guest tonight has entertained us for decades now, constantly reinventing himself, fit and fabulous, the indefatigable Mr. Anil Kapoor. एकदम झकास। Good evening. नहीं ना वो सब ठीक है but good evening. Thank you. I can feel that आप लोग में जान है because our conversation is gonna have a lot of fun. ऐसा reaction नहीं चलेगा. Okay? One more time. Everyone together. Good evening. I like it already. You know, making films is not easy. Every single thing that you see on a screen, एक छोटा छोटा सेकंड, अगर हीरोइन के बाल उड़ रहे हैं, तो वो एक पंखा रखा गया है, हवा खुद से नहीं चली है. अगर एक पेड़ हिल रहा है, तो वो कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नीचे बैठ के उसे हिला रहा है. So, every little second that is put there in film is deliberate and it is put there. बहुत सारे man hours लग जाते हैं. Grading, coloring, editing, post-production, hundreds and thousands of things. See, one lifetime, to be honest with you, is not enough for me to really fulfill all my dreams. I'm very fortunate, very blessed that I had, opportunity of working with some great actors, great actresses, phenomenal writers, and fantastic directors. And I'm sure everybody knows that filmmaking is it's completely a teamwork. But I have always been the director's actor, and I'm very proud to say that. And I totally, from my bottom of my heart, I say that director is the captain of the ship. But anyone, I'm sorry, I can push my luck with you. I know that. Not very many people can, but I can. So I'm pushing my luck and I'm asking you कि अगर एक वो किरदार है जो मन के अंदर एक ख्वाब बन के घूम रहा है कि ये किरदार मेरे को ज़रूर करना है. You know, something that is like, you know, kind of obsessed you, or let me put it another way, is there a film that you've seen and you thought कि ये character अगर मुझे करने मिलता, Indian or international, then what would that character be? If I get a character which is a historic character, which somewhere, obviously historic character is a certain kind of character where your face has to be some resemblance has to be there. So if I get that kind of a character, you know, if I can work on it, and if I have a writer and a director who can, I can work under, learn from him, and I can, I would love to do those kind of films. And of course, all the films Naseeruddin Shah has done, like Sparsh, I would love to do I've never played a blind man in any of my films. I'm looking forward to it. There are so many scripts which have come but have not been really satisfied. Matter of fact, I spoke to my international agents and my friends over there. I said, if I can get the
adaptation rights of Scent of a Woman, I would love to do it. Oh yeah. So मुझे लगता है this today's lifetime is not enough, that there are so many inspirations around. Every time I see, I find some inspiration from somewhere, and I want to do it. So I can go on and on. Yeah. देखिए अभी क्या है कि आपने पूछा इनसे कि कौन सा एक रोल है जो आप करना चाहते हैं। अनिल जी की ये एक खास बात है। अनिल जी जिस मकाम पर है आज हैं और जिस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद उनके अंदर का जो एक्टर है, आपने पूछा एक रोल, इन्होंने कम से कम मैं गिन रहा था 50 रोल गिनाए जो वो करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से यही इनकी एक खासियत है। मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर जो है वो अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ भाई मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तो वहाँ से मुझे लगता है प्रॉब्लम शुरू होती है। अनिल जी में आज भी मैं इनके साथ जब शूटिंग करता हूँ कोई भी फिल्म की, चाहे वो मेरी 7वीं फिल्म इनके साथ है, 8वीं फिल्म है, 9वीं फिल्म है, मुझे ये लगता है कि ये पहली फिल्म है और इनका जो जोश होता है, इनकी जो एनर्जी होती है, और इनके अच्छा ये खुश भी होते हैं, ये बहुत सिक्योर भी होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट भी होते हैं, थोड़े घबराए हुए भी होते हैं, वो हर चीज़ जो होती है जो ऐसा लगता है कि ये पहली फिल्म शूटिंग कर रहे हैं, पहला दिन शूटिंग है। आज मुझे लगता है कि जिस ऊंचाई पे जिस जगह पहुंचे हैं उसमें ये एक जो चीज़ें हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो डिड इट बिकम ईजियर, आसानी हो गई 30 फिल्में लिखने के बाद, 30-35 फिल्म्स लिखने के बाद? वॉज इट ईजियर टू डायरेक्ट? डिड इट हेल्प यू? मैंने फिल्में लिखी बहुत अच्छी हैं एंड आई वॉज अ राइटर, तो राइटिंग की वजह से बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन फिल्में बनाने में और बहुत सी चीज़ें होती है। तो मुझे ये सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला जब मैं डायरेक्टरों के साथ काम मैंने किया। मैंने राज कपूर साहब के साथ प्रेम रोग में आई वॉज असिस्टेंट, तो मैंने 3-4 साल राज साहब के साथ काम किया। उसके बाद आई वर्कड विद आई थिंक 12-13 अदर डायरेक्टर्स एज असिस्टेंट। देन मैंने साउंड में काम किया, आई वॉज इन साउंड रिकॉर्डिंग। देन मैंने एडिटिंग में भी बहुत 2 साल काम किया। आई वॉज इन आर्ट डिपार्टमेंट, आई वॉज द गोस्ट राइटर, मैंने 7-8 फिल्में लिखी लोगों की। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस है, मुझे हमेशा ये लगता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो छोटा काम ये ऊपर वाला मुझसे क्या करवाना चाहता है। बट आज मुझे लगता है कि ये जो भी मतलब ज़िंदगी में मुझे लगता है कि हर चीज़ आपकी बेकार हो सकती है, लेकिन आप कोई भी फील्ड में अगर कुछ दिन भी सीख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो ज़िंदगी में बेकार नहीं हो सकता। तो आज मैं जिस जगह भी पहुँचा हूँ, मुझे लगता है ये जितने छोटे छोटे मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, इनको मिलाकर मैं आज डायरेक्टर इतना बड़ा बना। Alyssa, what does it take for an actor to be a director's actor? I think it takes 3 things. Surrender, surrender, surrender. Anish ji, comedy is considered one of the hardest forms. बहुत ही मुश्किल माना जाता है कॉमेडी को अंजाम देना। एज एक्टर्स हमें बताया जाता है कि कॉमेडी कर ली तो मतलब आपने बहुत अच्छा कर लिया। Why do you choose comedy as a genre and so successfully? Does it come easily to you? Is it natural to you? इसके पीछे आपका फैमिली बैकग्राउंड है या आपका देखने का नजरिया है या इट्स समथिंग दैट यू कॉन्शियसली चोज या आपके अंदर एक सीरियस फिल्म छुपी पड़ी है? इसलिए कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं कोई भी वो फिल्म बनाना भी नहीं चाहता था जो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकूं। तो मुझे हमेशा लगता था कि एक पूरी फैमिली आए मेरी फिल्म देखने और सारी फिक्रों को, तकलीफ़ों को, इतनी टेंशन लाइफ में होती है, उनको सबको छोड़ करके 2-2.25 घंटा, 2.5 घंटा अगर वो हंस सके और मैं उनको हंसा सकूं, तो मुझे लगता है कि मेरा काम पूरा हो गया। और मुझे बहुत प्यार मिला जब से मैंने ये सारी फिल्में बनाई हैं, चाहे वो नो एंट्री हो, वेलकम हो, सिंग इज किंग हो, तो बहुत मज़ा भी आता है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि मैं खुद भी पूरे दिन की मेहनत करने के बाद थोड़ा रिलैक्स रहना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं कॉमेडी फिल्में बनाकर मुझे भी वो एक जो माहौल जो चाहिए होता है वो मिल जाता है मुझे। मेरा Anish ji, what is your take on the web kind of content that is coming out? मैं एक पिछले साल भर से कुछ मेरे टीम है राइटर्स की, वो बैठ के एक वेब सीरीज़ जो है वो हम लोग लिख रहे हैं एंड उसका हम लोग ने अभी से प्लान किया हुआ है। फर्स्ट सीज़न जो है वो 10 एपिसोड है,
सेकंड सीजन है, थर्ड है। तो फ्रॉम लास्ट एक्चुअली 1.5 years मेरे ऑफिस में हम 7-8 राइटर्स हैं। बिकॉज क्या है, वो इतना बड़ा मामला होता है। फिल्म जो है वो 2.5 घंटे की है, वो लिखना एक अलग चीज़ है, और ये जो इतना चलता रहता है ये लिखना अलग है। और हर एपिसोड जो फिनिश होता है वो एक तरह से उतने Cliffhanger. हाई पे Cliffhanger खत्म पे, करना हाँ। होता है कि लोग जो है दूसरा देख सके। जॉब Any film of yours which you would want to adapt to web? Anilji, you think any film which you have done which can be made into a good web series? I think quite a few of my films, yeah. I think नायक बन सकती है. मिस्टर इंडिया बन सकती है. Absolutely. तो बहुत सी हैं ऐसी कहानियां हैं जो I've been very fortunate, which can go on and on and on, you know. So, yeah, ये दो फिल्में immediately मेरे दिमाग में आती हैं.